My dear students, once again welcome to all of you. Students, in practice set 1.3 there are total 9 questions. Okay student, in previous lecture we have to completed 6 questions from this exercise and 3 questions are remaining. In this lecture we will complete these remaining 3 questions. Okay student, now question number 7 is quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersects ray AB in point T. Then prove that DE into BE is equals to CE into TE. Student, this is 7 questions of practice set 1.3. Student, 3 questions are remaining. Question number 7, question number 8 and the last is question number 9. So we will start from question number 7. Student, this is related diagram of question number 7. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Student, this quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E, student, this point E is on side BC. Point E is on side BC. Line DE, student, this is line DE intersect AB in point T. Student, this line DE intersect line AB at point T. Then prove that DE into BE is equals to CE into TE. Okay student, first we will write given. What's are given student? This quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है? पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट, पॉइंट E is on the side BC, is on the side BC. पॉइंट E कहाँ पर है? पॉइंट E कहाँ पर है स्टूडेंट? साइड BC पर है। एंड लाइन DE intersect AB, line DE intersect AB at point T. Okay student, then prove that means to prove means क्या होता है? हमको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? क्या प्रूव करना है? DE into BE is equals to CE into TE. Okay student, we will prove that DE into BE is equals to CE into TE. तो हमको जो प्रूफ करना है स्टूडेंट, इसमें से हम लोग 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे. वी विल प्रूव दैट DE into BE is equals to CE into T. तो आइए डायग्राम में देखते हैं सेगमेंट कहाँ है स्टूडेंट. कौन कौन सा हमको सेगमेंट चाहिए? सेगमेंट चाहिए DE, BE, CE एंड TE. तो आइए डायग्राम में जरा हम लोग चेक करते हैं ये सेगमेंट हम लोगों को कहाँ मिलेगा. स्टूडेंट, कौन कौन सा सेगमेंट चाहिए? DE चाहिए. सेगमेंट DE देख रहे हैं ना, दिस इज सेगमेंट DE, दिस सेगमेंट इज DE एंड वी वांट अदर सेगमेंट BE. स्टूडेंट, दिस सेगमेंट इज BE, this segment is BE and we want segment CE. कौन सा सेगमेंट चाहिए? CE. स्टूडेंट, this segment is CE and we want other segment TE. और कौन सा सेगमेंट चाहिए? TE. this segment TE. अच्छा, ये जो सेगमेंट हमको चाहिए, आप इससे देख रहे हो क्या कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट? वन ट्रायंगल इज ट्रायंगल DE. देखो DEC बन गया, मतलब एक ट्रायंगल हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे? ट्रायंगल DEC एंड अदर ट्रायंगल इज स्टूडेंट दिस ट्रायंगल BET. ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करेंगे? पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे. आफ्टर प्रूविंग सिमिलर ट्रायंगल्स then we will write their corresponding sides are in proportion
After writing corresponding sides are in proportion, we cross multiplication. We do cross multiplication and student we get this proof. बात समझ में आ रही क्या? ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग साइड को प्रपोर्शन में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो हमको प्रूफ करना है वो आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज प्रूफ. तो क्या प्रूफ कर रहे हैं हम लोग? नाउ स्टूडेंट वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल. अच्छा, पहले थोड़ा सा रफली इसको हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट. इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BET स्टूडेंट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, vertically opposite angles. Student, if two lines intersect to each other, then their vertically opposite angles are congruent. Okay, and student, this angle is equal to this angle. Why this angle is equal to this angle? क्यों ये दोनों इक्वल होगा? स्टूडेंट, these angles are alternate angles. ये देख रहे हो ना स्टूडेंट, this angle is equal to this angle, alternate angles. Student, this quadrilateral ABCD is a parallelogram, and we know that in a parallelogram opposite sides are parallel. पैरेललोग्राम में क्या होता है? opposite sides are parallel. Student, this is parallelogram, therefore its side AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. If AB is parallel to CD, then we can say this AT. Student, this AT is parallel to CD because of ABT are collinear point. Student, AT is parallel to CD, and this DT consider as a transversal, therefore this angle is equals to this angle because of they are alternate angles. तो पहले हम लोग इसको ही बताते हैं, this angle is equal to this angle. So student, we will write here AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Why AB is parallel to CD? Opposite sides of parallelogram. इसका रीजन क्या लिखेंगे? Opposite sides of parallelogram. Okay स्टूडेंट, opposite sides of parallelogram. Therefore डायग्राम ध्यान से देखते रहो. AB is parallel to CD. ये बात समझ में आ गई? Opposite sides of parallelogram. And after this we will write AT is parallel to CD. पहली लाइन में क्या लिखा हम लोगों ने? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा? दिस AB is parallel to CD. एंड नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा? AT is parallel to CD. क्यों पैरेलल हो गया? स्टूडेंट, इफ AB is parallel to CD, then AT is parallel to CD because of these points ABT are collinear point. तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? A-B-T. अंडरस्टूड ना? AT is parallel to CD and this DT consider as a transversal, and DT is as a transversal. Okay student, now this angle is equal to this angle, and name of this angle is TDC. Name of this angle is TDC is congruent to student this angle ATD. इसका रीजन क्या? alternate angles. ओके स्टूडेंट, alternate angles. अच्छा, जब भी हम लोग ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो इस एंगल का क्या नाम आप लिखेंगे? EDC लिखेंगे. अच्छा, TDC and EDC represent same angle, so student this angle TDC, see carefully in diagram, TDC angle is angle EDC. ये देखो जो एंगल, दिस एंगल, नेम ऑफ दिस एंगल स्टूडेंट TDC, and also this angle, name of this angle is EDC.
चाहे इसी एंगल का नाम आप EDC बोलो चाहे TDC बोलो, लेकिन जब हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो हम लोग एंगल का नाम क्या लिखेंगे, EDC लिखेंगे। इसके लिए हमने TDC की जगह पर क्या लिख दिया, EDC लिख दिया। अब उसका रीजन भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, दिस TED आर कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा ए साइड में देख लो ATD, स्टूडेंट ATD, इसी एंगल को मैं क्या लिख दूं, दिस एंगल इज BTE, एंगल BTE। ओके स्टूडेंट, BTE। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, यहां देखो TDC को आपने क्या लिखा, EDC लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट TED आर कोलिनियर, पॉइंट TED आर कोलिनियर, पॉइंट TED आर कोलिनियर। और यहां भी आपने चेंज किया है, देखो ATD को आपने क्या लिखा, BTE लिखा है, ATD को BTE लिखा। तो यहां पर क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स ABTR कोलिनियर पॉइंट्स, TED आल्सो कोलिनियर पॉइंट्स, इसको हम लोग यहां पर लिख चुके हैं, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट दिस इज कंसीडर इक्वेशन 1, इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब हम दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिखूं इधर बताओ, CED, नाउ इन ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल BET, नाउ इन ट्रायंगल now in triangle CED, now in triangle CED and this triangle BET, triangle BET। ओके स्टूडेंट, नाउ इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल अभी हमने कंसीडर कर लिया, दिस ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल BED। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो यहां से देखो एक एंगल है, इसके इक्वल हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कहां प्रूफ कर चुके हैं, ये देखो इक्वेशन 1 में। स्टूडेंट दिस इज इक्वेशन 1, इसको क्या हमने कंसीडर किया है, इक्वेशन 1। तो आइए इसको हम लोग यहां पर लिख देते हैं, एंगल EDC दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BT। कहां से आपने लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल इक्वल हो गया। एंड सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहां से लिख रहा हूं, नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल BET, एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल CED, एंगल CED। बताओ इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, इफ इन टू ट्रायंगल्स two pairs of corresponding angles are congruent, then the triangles are similar. Okay student, therefore this triangle and this triangle are similar triangles. Therefore triangle, कौन सा ट्रायंगल, CED, triangle CED is similar to this triangle BET, triangle BET। अच्छा, अब एक चीज हमने बताया है, जब भी आप ये सिंबल डालोगे, कौन सा सिंबल, सिमिलर का सिंबल जब भी डालेंगे तो 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस जरूर चेक करेंगे। तो 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस कैसे चेक करते हैं, जो एंगल जिसके कॉन्ग्रुएंट उसी ऑर्डर पर होना चाहिए। अच्छा, तो एंगल देखो, ये एंगल जो T पर बन रहा है, T पर जो एंगल बना हो किसके इक्वल है, D पर। तो यहां पर देखो D और T लास्ट में आया है, मतलब इसके लिए 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस करेक्ट है। और देखो एंगल E, ये भी E पर बन रहा है, ये भी E पर बन रहा है, तो दोनों में E जो है सेम ऑर्डर पर होना चाहिए। E देखो इधर मिडल में है, इधर भी मिडल में है, मीन्स स्टूडेंट 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस इज करेक्ट। नाउ राइट इट्स रीजन। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो गए, बाय AA टेस्ट। कौन से टेस्ट से, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। Student, if two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. Okay student, corresponding side क्या होती है, proportion।
तो यहां से चलिए मैं क्या लिख दूं इधर डी डी। अच्छा डी का करिस्पॉन्डिंग साइड बताओ टी, डी एंड टी आर करिस्पॉन्डिंग साइड, दिस इज इक्वल्स टू सीई, सीई, सीई का करिस्पॉन्डिंग साइड बताओ बीई। ओके स्टूडेंट, अच्छा ध्यान से देखो, सिर्फ हमको इतने सेगमेंट चाहिए, थर्ड पेयर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हमको क्या क्या चाहिए, डी चाहिए तो हमने डी लिखा है, बीई चाहिए तो वहां देखो बीई आ गया, सीई चाहिए हमने सीई भी लिखा है, टीई चाहिए टी भी लिखा है। बाकी थर्ड पेयर आप करिस्पॉन्डिंग साइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको चाहिए नहीं। अच्छा अब इसका रीजन क्या लिखोगे, व्हाट इज इट्स रीजन स्टूडेंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are in proportion। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, corresponding sides of similar triangle। अब यहां पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो चलिए डी इंटू क्या हो जाएगा बी, इसके नीचे क्या लिखेंगे डी इंटू क्या डी इंटू बी इज इक्वल्स टू सी ई इंटू टी, इज इक्वल्स टू सी ई इंटू टी ई। ये देखो यही प्रूव करना था। नाउ राइट हियर हैंस प्रूव। अब यहां पर क्या लिख देंगे हैंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस। सो नाउ राइट इट्स सोल्यूशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। Student, this is related diagram of question number 8. In the figure, segment AC and segment BD intersect each other in point P. Student, as you see in this diagram, segment AC and segment BD intersect to each other in point P, and AP upon CP is equals to BP upon DP. Then prove that triangle ABP is similar to triangle CDP. Okay student, now first we will write given। पहला काम क्या करना है, गिवन लिखना है। तो गिवन में क्या हम लोग लिखेंगे, सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन पॉइंट P। सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट to each other in point P, and also given that AP upon CP this is equals to BP upon DP, then prove that means to prove, क्या प्रूव करना है, triangle ABP is similar to triangle CDP। triangle ABP is similar to triangle CDP। ओके स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट, टू सेगमेंट्स AC and BD intersect to each other। two segments students, two segments AC and BD intersect to each other in point P। ये दोनों सेगमेंट AC और BD एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट P पर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ये दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP। अगर यही आपको समझ में आ गया ना तो फिर क्वेश्चन में सिर्फ दो लाइन का सोल्यूशन है। अच्छा क्या इसमें दिया है, AP अपॉन CP। तो जरा देखिए AP कहाँ है स्टूडेंट, दिस इज AP अपॉन क्या लिखा है CP। स्टूडेंट दिस साइड इज CP एंड अदर रेशियो इज गिवन दैट BP अपॉन DP। स्टूडेंट दिस साइड इज BP, दिस साइड इज BP अपॉन क्या लिखा है DP। स्टूडेंट दिस साइड इज DP, दिस साइड इज DP। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दिस साइड अपॉन दिस साइड मतलब ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो। अच्छा यही मतलब ना क्या लिखा है AP अपॉन CP। इसका मतलब आप क्या समझोगे, रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स।
रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ बीपी अपन क्या लिखा है डीपी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वी हैव टू कंसीडर वन ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल ए बी APB and the second triangle we consider this triangle CPD। अब दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखिए, दिस साइड अपॉन दिस साइड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। मतलब क्या दिया है, द रेशियो ऑफ corresponding sides, two pairs of corresponding sides, the ratio of two pairs of corresponding sides are in proportion। and student एक चीज और हमको ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमको पहले से क्या दिया है, टू पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन proportion and if their included angles are congruent then we can say these two triangles are similar। कौन से टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी कैसे अप्लाई करते हैं, ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, हाउ टू अप्लाई दिस टेस्ट स्टूडेंट। साइड एंगल साइड means if two pairs of corresponding sides of two triangles are in similar, two pairs of corresponding sides of two triangles are in proportion then and their included angles are congruent then the triangles are similar। बात समझ में आ रही है क्या। इस टेस्ट को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट। इट मीन्स स्टूडेंट, if two pairs of corresponding sides are in proportion and their included angles are congruent then the triangles are similar। तो दो, ये देखो, two pairs of corresponding sides are in proportion, ये तो पहले उसने दे दिया, पहले हमको दे के रखा है क्वेश्चन में, उसने दिया है टू पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो हमको और क्या देखना था, इसमें क्या ऑब्जर्व करना था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। स्टूडेंट, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर टू प्रूफ वी विल राइट हियर प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP and second triangle CPD, triangle CPD। in both the triangles AP upon CP is equal to BP upon DP। इसको हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये इंफॉर्मेशन में देखो दिया है, two pairs of corresponding sides of these two triangles are in proportion and their included angle कौन सा है, एंगल APB is congruent to एंगल CPD। यही हमको अलग से फाइंड आउट करना था। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या इसका रीजन लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टूडेंट, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD। कौन से टेस्ट से बताओ, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट हियर हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। Okay my dear student, now next question is question number 9 and this 9th question is last question of practice set 1.3. Student, this is related diagram of question number 9. In the figure in triangle ABC, student, this is triangle ABC. In triangle ABC, point D on side BC, point D, this point D on the side BC, पॉइंट डी कहां पर है, साइड BC पर है, सच दैट ए पॉइंट डी साइड BC पर इस तरह से है कि एंगल BAC
angle BAC. Student, name of this angle is angle BAC is equals to angle ADC. This information is given. Then prove that CA square is equals to CB into CD. Student, first write down given. given में क्या लिखेंगे? In triangle ABC. In triangle ABC, point D is on the side BC. On the side BC such that मतलब पॉइंट डी जो है साइड बीसी पर इस तरह से है कि एंगल बीएसी किसके इक्वल है? एंगल बीएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट लिखो चाहे इक्वल, स्टूडेंट इक्वल इज गिवन, एंगल बीएसी, दिस एंगल बीएसी इज गिवन दैट is equal to angle ADC. Student, this relation is given. Now to prove क्या प्रूव करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD. ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से आप देखिए स्टूडेंट. इन ट्रायंगल ABC दिखा क्या? ट्रायंगल ABC दिखा. इन ट्रायंगल ABC स्टूडेंट एंगल BAC, कौन सा एंगल? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC. कौन से एंगल के इक्वल है? ADC के इक्वल है. अच्छा, इसमें दो ट्रायंगल हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. अच्छा, हमको क्या प्रूव करना है? CA स्क्वायर, मतलब एक सेगमेंट हमको CA चाहिए. कौन सा सेगमेंट चाहिए? CA. कौन सा सेगमेंट चाहिए? CA. स्टूडेंट, एक सेगमेंट हमको कौन सा चाहिए? CA. अच्छा, दो ट्रायंगल को हम लोग क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट चैलेंज यही होता है कि हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल इसमें कंसीडर करें. तो इसमें तो स्टूडेंट देखो, एक ट्रायंगल ए है ADB, सेकेंड ट्रायंगल ADC है, थर्ड ट्रायंगल ABC है. तो टोटल इसमें कितना ट्रायंगल दिख रहा है? 3 ट्रायंगल दिख रहा है. जब हमको सिमिलर प्रूफ करना होगा तो हम कितने ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? 2 ही ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. तो 2 ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करना है वो कहां से डिसाइड करते हैं? जो हमको गिवन है और जो टू प्रूव है, मतलब कौन कौन सा सेगमेंट चाहिए. देखो, एक सेगमेंट हमको कौन सा चाहिए? CA चाहिए. तो यहां पर देखो, एक सेगमेंट हो गया CA. और कौन सा सेगमेंट चाहिए बताओ? CB चाहिए. तो CB, ये देखिए CB, ये वाला सेगमेंट हो गया CB. और कौन सा एक सेगमेंट चाहिए? CD चाहिए. तो ये देखो CD हो गया. तो आपको कंफर्म हुआ क्या? कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ये देखो, एक ट्रायंगल तो हम लोग कंसीडर करेंगे ABC. एक ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? ABC. अरे ABC जब कंसीडर करोगे तभी तो BC आपको मिलेगा. तो मतलब एक ट्रायंगल क्या कंसीडर करेंगे? ABC. अच्छा, हमको CD चाहिए तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? ट्रायंगल ADC. ये देखिए, येलो कलर का हमने बना दिया. तो आइए दोनों ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. 2 ट्रायंगल हमने कंसीडर किया. ये समझ में आया क्या? हाउ टू कंसीडर व्हिच ट्रायंगल? बात समझ में आ गई? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. अच्छा, ट्रायंगल ABC स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ABC ध्यान से देखना डायग्राम. इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC. और ADC कौन से ट्रायंगल में आएगा? ADC. स्टूडेंट, दिस एंगल ADC, दिस एंगल ADC इज इन ट्रायंगल ADC. दिस वन इज क्लियर ना स्टूडेंट? दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. बात समझ में आ गई क्या? हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया? एक देखो ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC. तो ट्रायंगल ABC में ए एंगल, कौन सा एंगल? BAC. ADC का कौन सा ट्रायंगल? ADC एंगल. ओके, ये दोनों इक्वल है. कैसे इक्वल है? दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. एंड स्टूडेंट, सी वेरी केयरफुली, दिस एंगल C इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स. इन ट्रायंगल ABC
and in triangle ADC. दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना एंगल C, so we will write here angle C is congruent to angle C. इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? कॉमन एंगल्स. ओके स्टूडेंट, कॉमन एंगल्स. Student, if two pairs of corresponding angles are congruent, it means both the triangles are similar. Therefore, triangle ABC is similar to triangle. अब देखो जब सिमिलर लिखेंगे, जब सिमिलर का सिंबल आपने लगा दिया तो 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस ना बहुत ही केयरफुली आपको लिखना है. ABC, ये पहले ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ABC डायग्राम में दिखा. इन ट्रायंगल ABC इसका जो एंगल A है ना, ADC में कौन से एंगल के इक्वल है? एंगल D के. तो इधर A पहले आए तो इधर क्या लिखेंगे? D लिखेंगे. बात समझ में आई क्या? एंगल C, ये जो वर्टेक्स एंगल C का है, ABC में भी C है और ADC में भी C है, तो C इधर लास्ट में लिखा है तो इसमें भी लास्ट में लिखेंगे. तो मिडल में इसमें क्या आ जाएगा? DAC. क्या आ गया? DAC. अभी इसका 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस करेक्ट है, तो रीजन इसका क्या लिखोगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो गए? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ओके स्टूडेंट, नाउ इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. अच्छा, हमको जो चाहिए ना हम लोग वही लिखेंगे. CA, तो यहां देखो ये CA हो गया. CA अपान क्या लिखना है इधर? CA अपान लिखना है CD. CA एंड CD आर करिस्पॉन्डिंग साइड. दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा और कौन सा एक साइड चाहिए हमको? CB चाहिए. ये देखो CB. अब CB का करिस्पॉन्डिंग साइड बताओ क्या है? CA है. यहां अपान CA हो गया. बस इतना ही हमको सेगमेंट चाहिए, तो बाकी थर्ड पेयर लिखने की जरूरत नहीं. अब इसका रीजन लिखेंगे करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट, अब यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. CA इंटू CA क्या लिखेंगे? CA इंटू CA. दिस इज इक्वल टू CB इंटू CD. CB इंटू CD. CA इंटू CA क्या आ गया? CA स्क्वायर. एंड दिस इज CB इंटू CD. तो ध्यान से देखो, यही प्रूव करना था, तो वहां पर लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड. ओके स्टूडेंट, understood now note down this solution. So student, in this way we have to complete it practice set 1.3.